Hello friends, welcome to Easy English tutorial. This is Dr. N.K. Sinha. Friends, this is just a kind of a doubt clearing classes in which you will have to understand so many things if you want to speak English. But at first, friends, I would like to say you that so many persons have asked me that, sir, I am not able to search your channel. What is the reason? Then first of all, look at how we will search our channel Easy English tutorial. But at first, I would like to make a request that if you have not subscribed my channel, then kindly subscribe it immediately and don't forget to like it and share with your friends and family. Then let's come and see how you can search my channel in YouTube. Friends, we'll open the YouTube and we will write here Easy English tutorial. This is the logo of my channel Easy English tutorial. Click on it. And now you have reached over my channel. This is my channel Easy English tutorial, and by clicking our subscribe button you can subscribe it. Friends, look, there are so many videos here related to English spoken and grammar. If you want to see the playlist, click on the playlist and you will see here three playlists. One is English grammar and structures related to tense. Here are three videos, you can see all of them. And the second is basic structures for beginner. If you are a beginner and if you are trying to learn English, in that case you will have to click on this playlist and you will have to see all the 16 videos uploaded in it. And this is the third playlist. Its name is English grammar article. If you want to learn article, click on it and see all the rules related to article. Friends, it's a new channel. So many people ask me that, sir, I am not able to search your channel. That's why I am telling how you search this channel, and I think now you will be able to search it. Then friends, now move to the Easy English tutorial. Friends, as I told you that this is just a kind of the doubt clearing classes. So here are some questions. One question is asked by Aditya. He is asking, इनके प्रश्न को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर, बाजार में बहुत सी इंस्टीट्यूट और क्लासेस है जो मात्र 3 माह में अंग्रेजी सिखाने की गारंटी लेती है, क्या मुझे इसे ज्वाइन करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप बाजार में ऐसी इंस्टीट्यूट या क्लासेस जो कि ये गारंटी देती है कि 3 माह में मैं आपको अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए सिखला दूंगा, तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एक भ्रांति है, एक गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी आपको 3 महीने में अंग्रेजी लिखना और बोलना नहीं सिखला सकता है। मगर एक बात है कि आप बेसिक्स सीख सकते हैं, अंग्रेजी ग्रामर के बारे में जान सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सकते हैं। तो आदित्य, यदि आप लर्नर्स हैं, आप अभी अंग्रेजी सीखने की इच्छा रख रहे हैं, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट को अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। किंतु आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, आपको लगातार इस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तभी आप अंग्रेजी को ठीक तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां एक दूसरा प्रश्न भी है जिसे राज राजेश्वरी ने पूछा है कि सर, किताबों के ढेर में अंग्रेजी सिखाने वाली सही किताबों का चयन एक बड़ी समस्या है। प्लीज मुझे एक ग्रामर तथा एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन सिखाने वाली किताब सजेस्ट करें। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा
कि ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है। बाजार किताबों से भरी हुई है, जहां पर इतने ग्रामर की पुस्तकें हैं, इतनी इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताबें हैं कि सही किताबों को चुनना यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं यहां पर आपको 2 किताबें सजेस्ट करूंगा राजराजेश्वरी, जिन्हें आप जरूर पढ़ें, जिससे कि आप ग्रामर में और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर लेंगी। तो ये 2 किताबें हैं जिनकी नाम को आप नोट कर लें। पहला गोल्डन इंग्लिश ग्रामर, जिसके लेखक हैं सिद्धनाथ प्रसाद जी, और अंग्रेजी ट्रांसलेशन सिखाने की किताबें हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसके लेखक हैं आरपी सिन्हा जी। मैं आपको यहां बतलाना चाहूंगा कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए मेरे विचार में यह बेस्ट बुक है, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी को लिखना और पढ़ना और बोलना सीख सकती हैं, बशर्ते आप लगातार सही मार्गदर्शन में मेहनत करें। आइए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसे नेहा ने पूछा है। सर, आई हैव प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड इन ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स, काइंडली गाइड मी। तो यहां पर स्नेहा, मैं आपकी समस्याओं के बारे में बतलाना चाहूंगा। तो आप जिन समस्याओं से पीड़ित हैं, या कहें कि जानकर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रही हैं, उनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार है। पहला, फियर साइकोलॉजी, आप भयग्रस्त हैं। हेजिटेशन दूसरी समस्या है, लोगों के बीच अंग्रेजी बोलने में आपको हेजिटेशन फील होती है। तीसरी समस्या, थिंकिंग ऑफ स्मार्ट टॉकिंग, आप अचानक बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहती हैं लोगों के बीच। चौथी समस्या बहुत ही गहन है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अंग्रेजी बोलने के लिए आप जो है सो हिंदी वाक्य को अपने दिमाग में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना प्रारंभ कर देती हैं, जिस कारण आप सही तरीके से अंग्रेजी को नहीं बोल पाती हैं। नंबर 5, थिंकिंग ऑफ एरर्स व्हाइल स्पीकिंग, आपको डर लगता है कि बोलने के दौरान कुछ गलती ना हो जाए। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये समस्या से आप केवल अकेली नहीं हैं जो कि पीड़ित हैं, बल्कि जो भी हिंदी भाषी छात्र हैं या छात्राएं हैं जो अंग्रेजी को सही ढंग से बोलना चाहते हैं और जो ऑलरेडी ग्रामर और स्ट्रक्चर्स की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो इसके बाद ये समस्याओं के कारण वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। तो मैं आपको इनके कुछ समाधान बता रहा हूं, आप उस पर ध्यान दें और उसका पालन करें, और आप बहुत जल्द अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलने लगेंगी। देन स्नेहा, यू मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स, पहले अपनी समस्याओं पर विचार करें और अब उनके समाधान को आप देखें। फियर साइकोलॉजी आपकी पहली समस्या है। देन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, आपको अपने में आत्मविश्वास लानी चाहिए, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। नंबर 2, हेजिटेशन, तो आपको यू मस्ट ट्राई टू गेट ओवर हेजिटेशन, आपको हेजिटेशन से निकलने का प्रयास करना चाहिए, और याद रखें ये केवल आप ही कर सकते हैं, आपकी जगह पर कोई दूसरा नहीं है जो इसे कर सकेगा। तो आप कॉन्फिडेंट हों और इस हेजिटेशन से निकलने का प्रयास करें। थर्ड, थिंकिंग ऑफ स्मार्ट टॉकिंग, आप स्मार्ट टॉकिंग के विचार को निकाल दें, और यू शुड चूज सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस, आपको सरल और छोटे छोटे वाक्यों का चुनाव करना चाहिए, जिन्हें सोचने में आपका समय व्यर्थ ना हो और आप उसे आसानी से तुरंत ही व्यक्त कर लें, बोल लें। चौथी समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन, ये समस्या लगभग हर छात्र की है
जो अंग्रेजी के ग्रामर और ट्रांसलेशन को ठीक से सीख चुके हैं। तो जब भी वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, वो पहले हिंदी वाक्य को अपने दिमाग में कहते हैं और उसके पश्चात उसे ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसे बोलने का प्रयास करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें ढेर सारा समय व्यर्थ होता है, सोचने में चला जाता है और लोगों के बीच आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कि सामने वाला बड़ा फ्लुएंट अंग्रेजी बोल रहा है और मैं सोच रहा हूं। तो इसका समाधान है, यू शुड ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। किस भी चीज पर आप बोलना चाह रहे हो या बातें कर रहे हो, उस पर आप अंग्रेजी में ही सोचें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हम अंग्रेजी में कैसे विचार कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, हिंदी आप किस माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं? आपके पास तो कोई मीडियम नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कहते हैं, ये आपके दिमाग में रहता है और वो डायरेक्ट आप अपने जुबान से उसे व्यक्त कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने अंग्रेजी भाषा को भी बनाना होगा और आप छोटे छोटे सरल वाक्यों का चुनाव करें और उस सब्जेक्ट पर जिस पर आपको बोलना है या आप जो बातचीत कर रहे हैं उस पर बहुत ही छोटे और सिंपल सेंटेंस का चुनाव करके आपको कहना होगा, जिसमें कि आपका सोचने में समय व्यर्थ ना हो। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे और इस पर आप मनन करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम्स को देखें, थिंकिंग ऑफ एरर्स व्हाइल स्पीकिंग। ये भी एक बड़ी समस्या है। हमें हमेशा भय लगा रहता है कि अंग्रेजी में बोल रहा हूं तो कहीं गलती ना हो जाए। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको आपके माइंडसेट की आवश्यकता है। क्यों? आप इस पर एक बार ध्यान रखें और इसके बारे में कभी नहीं सोचें। डोंट थिंक अबाउट एरर्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आप जब अंग्रेजी बोल रहे हैं, एरर के बारे में बिल्कुल ना सोचें। याद रखें, देयर इज ए प्रोवर्ब, एक कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मानव का स्वभाव है और इस गलती को सोचकर यदि आप काम करना ही छोड़ देंगे तो आपके काम करने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। इसलिए आप लगातार अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे आप इससे निजात पा जाएंगी, आप इसे नियंत्रण में ले लेंगी। तो आप इन 5 समस्याओं से ग्रसित हैं जिसके समाधान मैंने आपको बतलाए हैं। आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह डाउट क्लियरिंग क्लासेस यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत कराएं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।